All, Saksham this side from Fairgaze. A very welcome to all the lovely audience gathered here for the webinar session on how to be unique. The webinar is organized in association with Bal Bhavan Public School, Mayur Vihar Phase 1. So I would like to welcome Mr. Ram Mishra, who is webinar facilitator. So just a brief about his profile. Mr. Ram Mishra is a young passionate magician, supernatural illustration, and psychological illusionist. He is having a 14 plus years of experience and had made World Guinness record. I welcome you, sir. Handing over to you. All right. Wait. Hello. Am I audible to you? Please एक बार chat में बता दीजिए. Am I audible to you? And my video is perfect to you. एक बार आप बता दीजिए कि आप मेरी आवाज आप तक सही पहुंच पा रही है और मेरी वीडियो आ रही है. Okay. So everyone is saying yes, yes, yes. Okay. So first of all, let me introduce myself. My name is Ram Mishra, and I'm a professional magician and a psychological illusionist. मैं आपको बताता हूँ who is a psychological illusionist. Who read minds, who control minds, who hypnotize people. सुनने में काफी इंटरेस्टिंग और स्पूकी लगता है ना. So before starting anything, as I am a magician, I am not very good in conducting these kind of webinars and all, but I'll show you कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ. So before doing anything, everyone, I have an envelope with me. As you can see, this is a empty envelope, right? Okay, I have an envelope with me and I have a piece of paper, and मैंने इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है. Moment, I will reveal it कि इस पे क्या लिखा हुआ है. All right. So मैं इस पेपर को अभी फोल्ड कर रहा हूँ. I am folding this paper, right? And I am putting this paper into this envelope, as you all can see. And ये envelope starting से लेके end तक यहाँ पे रहने वाला है. So keep your eyes on this envelope, okay? Keep your eyes on this envelope. So let's start today's session, and our topic of today is how to be unique. Unique कैसे बने, right? And first of all, before starting this up, I would like to thank Fairgaze for this opportunity to bringing us all together. And इसी के साथ आज का webinar शुरू करते हैं. So first thing, how to be unique. Unique कैसे बने? Yes, when it comes to unique, काफी सारे definitions हैं uniqueness के बारे में. You know, काम अलग करना, बातें अलग करना, और किसी अलग habit को लेना, आपको कोई भी चीज unique बना सकती है. But you know the main thing, start करने के लिए सबसे main thing ये है personality. Yes, personality एक ऐसी चीज है जो आपको unique बनने में काफी ज्यादा help करती है. मैं आपको definition देता हूँ कैसे. Suppose अगर किसी की अच्छी पर्सनालिटी है, if someone have a very attractive, good, amazing personality, automatically क्या होता है, लोग उनसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. आपके साथ भी ये होता होगा. अगर किसी की भी अच्छी पर्सनालिटी, उसमें मतलब आप the way of talking, the way of behaving with people, the way of sitting, the way of eating, अगर आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, automatically people get influenced by them. आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो एक अच्छी पर्सनालिटी और पर्सनालिटी के भी दो तरीके होते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल टू थिंग्स. फर्स्ट वन, अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, एंड सेकंड वन, अ नेगेटिव पर्सनालिटी. हमने ऐसी चीजें सुनी है कि यार इसमें से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसमें से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है. सो इट इज ऑल रिलेटेड टू पर्सनालिटी. अगर आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी है तो ऑटोमेटिकली आपको से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, एंड अगर आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी है तो ऑटोमेटिकली यू नो नेगेटिव पर्सनालिटी आएंगी. So the question is, अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, and the question is how to keep a positive personality. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. So starting from the peer group, आप सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आप सारे, मैं आप ही का एग्जांपल दूंगा और आप जिस चीज से रिलेट कर पाए ऐसा ही एग्जांपल मैं देने वाला हूँ. So starting from your peer groups, your friend group,
you have to be very particular. Okay, and I am again repeating this, you have to be very particular in choosing your friend group. मैं आपको बता दूं इससे क्या इम्पैक्ट आता है. अगर एक आपका अच्छा फ्रेंड है, यू नो, अ गुड फ्रेंड, एंड सब कुछ बताने से पहले ये बहुत इजी होता है पहचानना कि कौन आपके लिए अच्छा और कौन आपके लिए गलत है. ओके, सो having a good friend by your side. Sir, okay, so we have a chat. Sir, you are not clearly audible. Kindly come near the microphone. Okay, so अगर सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर सबकी शिकायत है कि मैं क्लियरली ऑडिबल नहीं हूँ, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए. और अगर ये परफेक्ट है तो प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए. ओके, सो एवरीवन इज सेइंग कि मैं क्लियरली ऑडिबल नहीं हूँ, तो पहले बता देते, मैंने इतनी बात करी. ओके, इज इट्स नॉट क्लियर? Okay, okay. Let me first fix this thing. कहीं मैं बोलता चलो और आपको कुछ पढ़ लेना पड़े. Okay. All right. Hello. आप कुछ फर्क पड़ा? Yes, sir. You are more audible now. Now it's okay. Okay, better. Okay. Fine. So, we were talking about friend group. The group of friends जो हमारे आसपास रहते हैं. Okay. So now we are talking about positive personality. अगर कुछ लोगों ने नहीं सुना, so friends हमें चूज करने में काफी ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए, बिकॉज एक फ्रेंड एक ऐसी चीज होती है, यू नो, इन आवर स्कूल टाइम, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे साथ ये बहुत होता है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके साथ भी होता है. जब भी हमें कोई एडवाइस लेनी होती है या हमें कोई भी चीज करनी होती है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं, एंड इट इज ऑल कनेक्टेड. अगर आपको अच्छी एडवाइस चाहिए, सो आपका एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, राइट? एंड अच्छा दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको कॉल करें और वो एकदम आपकी कॉल उठा ले एंड यू नो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे. ऐसा नहीं होता. अच्छे दोस्त का मतलब, अच्छे दोस्त का मतलब ये होता है जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करे, राइट? आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, यू नो, सबकी लाइफ में एक गोल होता है. वॉइस इज नॉट क्लियर. Okay, let me fix this thing. Okay, bring me the earphones. Ji, bring me the earphones, red one. Wait. Let me fix this thing. Voice is okay. Voice कुछ बोल रहे हैं. Voice is okay. कुछ बोल रहे हैं. It's not clear. So let me fix this thing first. ये पहले एक बात सही करनी, कहीं मैं बोलता जाऊँ और आपको कुछ सुनाई ना दे, मैं खामखा बड़बड़ करता रहूँ. Okay, let me try the earphones. एंड आज जो मैं बातें करने वाला हूँ, मैंने इसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा, एंड मैंने इसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा है. ओके, सक्षम इज मैसेजिंग मी, आस्क योर मेंटर हाउ टू बी यूनिक. ब्रो, आई एम द मेंटर. मैं बताने वाला हूँ. व्हाई आर यू मैसेजिंग मी? ओके, वेट, लेट द ईयरफोन्स कम. आई होप इट विल वर्क. All right everyone, voice is cracking, no problem. हम तो इसको फिक्स कर देते हैं. Yes. क्या अब मुझे बताइए कि वॉइस सही आ रही है? इट इज ग्रेट. ओके, कनिकानंदा सेज ग्रेट. ओके, सो अगर ये ग्रेट है तो चलिए इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वाह, चैट एकदम से स्पैम हो जाती है. आई लव दिस. सो नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स. सो ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ. यू नो, मैं कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं बताने वाले जिससे आप रिलेट ना कर पाओ या जो आपके सर के ऊपर से जाने वाली है. टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स के मामले में बहुत चूजी होना चाहिए और पड़ता है. यू नो, एक ऐसी लाइन है, ऐसा बोला जाता है, जितना छोटा सर्कल उतना ज्यादा सुख. आई एम रिपीटिंग दिस, जितना छोटा सर्कल उतना ज्यादा सुख. सो ये जो सर्कल है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड सर्कल. मैं बताता हूँ, आई हैव ट्राइड दिस थिंग. जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ. हैविंग अ बिग फ्रेंड सर्कल आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली ये चीज. अगर आपको बहुत लोग जानते हैं, आप सबसे दोस्ती रखते हैं, आप सबको खुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, नो,
नो, ये पॉसिबल नहीं है. फर्स्टली आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे दूर जाते जाएंगे. यू नो, टॉकिंग अबाउट ट्रू फ्रेंड्स काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं. यू नो, मैं पर्सनली बताता हूँ दैट आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. आई हैव परफॉर्मिंग since last 13 years, and I have done more than 700 professional shows in India and outside our country. But you know, my friends, they don't give a damn कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ. You know, the transparency, they always treat me like shit. मतलब ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल उनके लिए आई एम ओनली राम मिश्रा, नॉट राम मिश्रा मैजिक. एंड ये चीज मैंने रियलाइज करी थी स्कूल के बाद. यू नो, मैं स्कूल में एक ऐसा 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 बॉय था जिसको बहुत मजा आता था लोगों से घिरे रहने में, या लोग काफी ज्यादा लोगों से बात करने में. एंड जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स है, जो अभी मेरे साथ है, आई एम लकी टू हैव देम. वो मुझे तब भी कोई घास नहीं डालते थे, वो मुझे आज भी कोई इतनी ज्यादा घास नहीं डालते. और मुझे स्कूल के बाद ये चीज समझ आई व्हेन व्हेन आई पास्ड माय स्कूल. सो जो मेरे साइड में जो फ्रेंड सर्कल थे, द ऑल द पीपल हु वर अप्रिशिएटिंग मी, हु वर गिविंग मी समथिंग, दे वैनिश्ड. उनका फिर स्कूल के बाद पता नहीं चला ये गए तो गए कहाँ. बट माय ट्रू फ्रेंड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तब भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है, और उस वक्त भी मेरे साथ थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था. यू नो, जब सब वैनिश हो गए थे. सो तब मुझे ट्रू फ्रेंड क्या होता है इस चीज की रियलाइजेशन हुई. एंड कमिंग टू द पॉइंट, हाउ टू इंक्रीज योर पर्सनालिटी. सो जब मुझे ये बात पता लगी कि यार ये तो कुछ मतलब कुछ गलत हो गया मेरे साथ. यार जितने लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, क्या वो सब झूठ था? यस, वो सब झूठ था. दे वर अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू वर डूइंग समथिंग यूनिक. और मैं उससे भी अच्छा कर सकता था अगर मैं उन लोगों पे ध्यान ना देता. और ये चीज मुझे स्कूल के बाद तब रियलाइज हुई जब मैं दूसरे लोगों को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट करता था. वो टाइम मैंने अपने ऊपर यूटिलाइज करना शुरू करा. यू नो, पर्सनालिटी, हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं. सो पर्सनालिटी मैंने कैसे इंक्रीज करी? मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू करा. जो मेरी अनएक्सपीरियंस चीजें थी, जो मैंने अपने खुद के स्किल्स मैंने तब तक जाने नहीं थे, उस टाइम में वो स्किल्स मैंने अपने जाने, मैंने उन पे काम करा. एंड दैट मेड मी यूनिक, एंड दैट इंक्रीज्ड माय पर्सनालिटी एज अ पर्सन. क्योंकि वो टाइम मैंने अपने आप को दिया. एंड माय फ्रेंड्स, द ट्रू फ्रेंड्स, वो मेरे साथ हैं. यू नो, मैंने अपना फ्रेंड सर्कल चूज करा, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड थिंग, मैंने अपनी पर्सनालिटी इंक्रीज करी. सो द कंक्लूजन इज, if you want to increase your personality, you have to give time to yourself. अगर आपको अपनी पर्सनालिटी इंक्रीज करनी है, अच्छी करनी है, सो आपको खुद को समय देना पड़ेगा. घर बैठे बैठे नहीं होगी. मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को. आपके जो स्किल्स हैं, आपको उनको और अच्छा करना पड़ेगा. एंड यू नो, स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है. इट हैज नो एंड. आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं और करते जा सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप आपका स्किल इंक्रीज होता जाएगा. सो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ टाइम टू इंक्रीज योर पर्सनालिटी, improve your personality. And पर्सनालिटी जब बात आती है, पर्सनालिटी के तो काफी सारे पॉइंट्स है. योर वे ऑफ टॉकिंग, the way you behave with people. So, yeah, Sakshi Pandit says how it is related to uniqueness. So, Sakshi, yeah, and first thing, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, so आप तुरंत पुट कर देना, मैं सबको पढ़ूंगा. So, Sakshi, how it is related to uniqueness, मैं आपको बताता हूँ. Being unique, सिर्फ यूनिक ऐसे ही नहीं बना जाता कि you have a good personality. Oh, sorry, सिर्फ यूनिक ऐसे ही नहीं बना जाता कि कुछ आप अलग कर रहे हैं, कुछ समाज से अलग कर रहे हैं. नो, ये चीज आपको यूनिक नहीं बनाएगी. आप, ये कुछ स्टेप्स है. यू नो, द फर्स्ट थिंग, पर्सनालिटी फर्स्ट स्टेप है जो आपको यूनिकनेस की तरफ ले जाती है. राइट? इफ यू विल हैव अ गुड पर्सनालिटी, यू नो, कोई भी काम करने से पहले, ऐसा ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, नो मैटर आप क्या कर रहे हो लाइफ में, यू नो, सबसे पहली चीज है आपको एक अच्छा इंसान बनना है. और अच्छे इंसान आप कैसे बनते हो? विद अ गुड पर्सनालिटी. राइट? योर बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपल शुड बी गुड. राइट? द वे ऑफ टॉकिंग. And being okay, Tripti says being unique is better than being perfect.
हाँ, सो ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें लोगों के काफी अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सो मैं अभी इस चीज को नहीं छेड़ने वाला, हम सिर्फ यूनिकनेस पे फोकस करेंगे। सो साक्षी, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया हो, और अगर नहीं मिला हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं उसको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कीप ए एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपना एटीट्यूड रख सकते हैं, यू नो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब आप ये वर्ड सुनते होंगे एटीट्यूड, आपके मन में ये चीज आती होगी कि एटीट्यूड मतलब लोगों से बात कम करनी है, यू नो, थोड़ा अपने एटीट्यूड में रहने, लोगों से कम बोलना। नो, दिस इज नॉट व्हाट एटीट्यूड इज। अगेन, एटीट्यूड में भी दो फॉर्म्स होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। प्रणव रस्तोगी से दैट्स ईगो, यस दैट्स ईगो, या दैट्स द करेक्ट वर्ड। एंड एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज लाइक, if I am talking to one person, for example, if I am talking to Sumesh is a imaginary guy in this situation. So if I am talking to Sumesh, I'm meeting him first time. मैं पहली बार सुमेश से मिला हूँ और मैं सुमेश से बात कर रहा हूँ, राइट? सुमेश ने जब मुझसे बात करी, सुमेश को मुझसे बात करके अच्छा लगा। सुमेश से मैंने अगर कुछ एजुकेशनल बात करी तो सुमेश ने उस बात से कुछ सीखा। सुमेश अगर मुझसे खुल के अपना ओपिनियन रख पा रहा है, अगर खुल के मुझसे कुछ सवाल कर पा रहा है, अगर खुद से खुल के मुझसे कुछ पूछ पा रहा है, तो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, राइट? इसमें एटीट्यूड की अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं सुमेश से कम बात कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं। नाउ, हाउ टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड? या द फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, लुक स्ट्रेट इन हिज और हर आईज। जब भी आप किसी से बात करते हो, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते, बट इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी से बात करते हो, ऑलवेज लुक इनटू देयर आईज। हमेशा आंखों में देख के बात करनी चाहिए। एक कहावत है, ऐसा बोलते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं वो आंख से आंख मिला के नहीं बोल पाते। यस, दिस इज ट्रू। सो अगर आपको कुछ भी बोलना है, एक बार आंख से आंख मिला के बोलो। इससे दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, सामने वाले पर्सन पे ये इंप्रेशन पड़ता है कि योर एटीट्यूड, दैट मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट, राइट? मैं उसी बात पे आ रहा था। योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव एंड यू आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट उस चीज में जो आप बोल रहे हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने टॉपिक को लेकर, राइट? फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग, सामने वाला आपकी बात से एग्री भी करेगा और आपकी पूरी बात सुनेगा भी, यू नो। बहुत दुख होता है जब आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा के कोई बात बोलते हो और सामने वाला सुनता नहीं है उस बात को। सो ये चीज, body language matters too, right sir? So body language is connected to personality, right? So personality, body language is the same thing. So coming back to the attitude, and दूसरी चीज, सामने वाला आपकी पूरी बात सुनता है। एंड जब आप बोलते हो, आप सामने वाले से बस एक यही चीज चाहते हो कि वो आपकी बात सुने और आपसे एग्री करे। सो व्हाई नॉट ट्राई दिस थिंग? एंड द सेकंड थिंग, नेगेटिव एटीट्यूड। मैं नेगेटिव कैन, ओके, भवीन शाह इज आस्किंग, कैन वन पर्सन, सॉरी भवीन, आपका क्वेश्चन चला गया। कैन वन पर्सन कैन हैव टू एटीट्यूड्स फॉर टू डिफरेंट पीपल? सो आपने मुझसे पूछा दो एटीट्यूड। ब्रो, मैं बहुत आपसे यू ऑल माय ब्रो एंड आपकी सिस्टर्स है वेबिनार में, ओके, थोड़ा हंसी मजाक चलता रहेगा। सो ब्रो, कीपिंग टू एटीट्यूड्स, राइट? आपने ये बात पूछी। सो मेरे ख्याल से ये वर्क नहीं करने वाला। मैं आपसे बताता हूँ क्यों। बिकॉज वो आपकी ओरिजिनलिटी को आपसे दूर ले जाएगा। जो आपका एक एक आपका जो पर्सनल पर्सनल एटीट्यूड है, आप उसी को क्यों नहीं रखते? आप दूसरे के बारे में सोच क्यों रहे हो, यू नो? जब दूसरा एटीट्यूड बनाओगे वो इमेजिनरी होने वाला है, उसके लिए आप मेहनत करोगे, आप वो झूठा बनाओगे, राइट? सो दैट इज नॉट यू, वो आप नहीं हो। सो कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है? एंड एंड हु नोज कि जो दूसरा आपका एटीट्यूड है वो आपका पॉजिटिव ही होने वाला है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? सो इसमें दोनों साइड्स हैं। सो ऑलवेज की वन एटीट्यूड। ऐसा ना हो कि कोई कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं आपके बारे में, यू नो, कोई थर्ड पर्सन किसी फोर्थ पर्सन से आपके बारे में बात कर रहा है और वो उन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आपके बारे में। कई किसी के साथ आपने किस एटीट्यूड से बात करी, किसी के साथ आपने किस एटीट्यूड से बात करी, यू नो। सो ओपिनियन क्लैश हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मजा तब आएगा जब दोनों लोग आपके बारे में बात करें और दोनों लोग सेम चीज बोले, यार यू नो दैट गाय इज मार्वेलस, यू नो द वे ही स्पीक्स। फिर उससे सेकंड पर्सन भी रिलेट करे, या दैट थिंग द वे ही स्पीक्स, यू नो, को रिलेट कर रहे हैं। बट सर वी नीड टू प्रिटेंड
we need to pretend yes in some situations, hide our true feelings. See, if you're talking about this, so इसमें हमें दूसरे एटीट्यूड की जरूरत नहीं है. So थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ने में बीच में रुक गया. So the first thing was keep looking into the eyes, and the second one is सामने वाले के इंटरेस्ट को देख के आप उससे बात करो. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, राइट? एंड जब लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हो, आप जबरदस्ती उनसे बात करने में लगे हो. सो दैट थिंग, वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करेगी. इट्स अ वेरी बिग वर्ड, बट स्टिल ये आपकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करेगी. एंड सामने वाला बंदा आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ट्रीट करने लगेगा. सो नेवर डू दैट थिंग. इफ समवन इज इन हिज और हर प्राइवेट स्पेस और वो नहीं चाहते बात करना, उनको छोड़ दो. सो द राइट टाइम टू स्पीक, right time to present your attitude should be discovered. Okay, so हमेशा जब भी आपको बोलना है, आपको सही समय देख के बोलना है, राइट? ये नहीं कभी भी आप बोलने लगे. सो उस सिचुएशन में काफी मजाक भी बन सकता है आपका, काफी बेइज्जती भी हो सकती है. सो जो सही समय देख के बात करेगा उसका सिक्का हमेशा ऊपर होगा. द पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा उसका ऊपर रहेगा. सो या दैट वाज एटीट्यूड, कि आपको अपने एटीट्यूड को कैसे बिल्ड करना है. और जब ये चीजें आप फॉलो करने लगोगे, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा. और ये बहुत कम होगा कि लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे या लोग आपकी बात सुनना नहीं चाह रहे. सिर्फ ये दो चीजें बहुत कुछ कर सकती हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा. सो नेक्स्ट थिंग, हाउ टू इम्प्रूव आवर हैबिट्स. हैबिट्स एक ऐसी चीज है जो एटीट्यूड और पर्सनालिटी दोनों चीजों को अफेक्ट करती है. मैं बताता हूं कैसे. हैबिट कुछ भी हो सकती है. योर हैबिट कैन बी प्लेइंग क्रिकेट, योर हैबिट कैन बी स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स इन अ डे, योर हैबिट कैन बी ईटिंग फूड. हैबिट कुछ भी हो सकती है, राइट? सो हैबिट्स को आपको कैसे चूज करना है. एंड समवन सेड दैट्स हॉबी. या हैबिट्स एंड हॉबीज, हम इन दोनों को कोरिलेट करते हैं. ओके, सो अगर आपको इन चीजों को, अपनी हैबिट्स को और अपनी हॉबीज को चूज करना है और इंक्रीज करना है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है. ओके, माय डैड गेव इट टू मी एंड आज मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ. आपको खुद पता लग जाएगा इस चीज को फॉलो करके कि क्या क्या चीजें आपके लिए सही हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए गलत हैं. सिंपल. सो इन अ डे, ये आपको खुद करना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है. सुबह से लेकर रात तक आप सारी चीजें करो. जैसे आप हो, आप जो जो चीजें करते हो, आप इस लॉकडाउन में कर रहे हो, आप वो सब करो. बट इन द नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, और कुछ लोग तो आजकल सुबह भी सोते हैं 4-5 बजे. सो जब भी आप सोने वाले हो, ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर विद यू, ब्लैंक पेपर, एंड टेक अ पेन विद यू. एंड जो जो आपने पूरे दिन में करा, ओके, ऑल द एक्टिविटीज, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. कब आपने टीवी देखा, कब आपने गेम खेला, कब आपने खाना खाया, कब आप सोए, आप वो सारी चीजें उस पेपर पे लिखो, राइट? देन आपकी वो सारी एक्टिविटीज उस पेपर पे आ गई. नाउ आपको क्या करना है इसके बाद? जो जो एक्टिविटीज आपको लगता है आपने बहुत ज्यादा यूजलेस करी है, जिसका जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपको यूनिक बनाने से, उन सारी एक्टिविटीज को आपको कट करना है, राइट? एंड अगले दिन से आपको कोशिश करनी है कि वो सारी चीजें आप ना करो. एंड द नेक्स्ट डे अगेन मेक अ चार्ट. ओके, अगेन ऑल द एक्टिविटीज, जो जो आपको लगता है यूजफुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, प्लीज उसको काट दो एंड अगले दिन से उसको फॉलो करना बंद कर दो. एंड एक दिन ऐसा आएगा, अपना टाइम आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप वो लिस्ट देख के बोलोगे वाओ, मैंने आज कितना प्रोडक्टिव काम करा है, आज मैंने अपने लिए कुछ करा है. सो हैबिट्स एंड हॉबीज ऐसे आपकी सही होगी. सो या ये बहुत सिंपल चीज है. अगर आप इसको आज से करना शुरू कर दोगे सो बहुत अच्छी बात होगी. द नेक्स्ट थिंग, very interesting topic, how to be creative. Okay, so this is a question जो काफी सारे लोग पूछते हैं, how to be creative, you know
ओके सो एवरीवन अभी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, सो एक काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम थोड़ा बाद में लेंगे. ओके सो अभी ये सारे क्वेश्चंस को हम थोड़ा बाद में लेंगे एंड मीनवाइल अभी थोड़ा सेशन को कैरी ऑन करते हैं क्योंकि टाइम की भी हमारे पास थोड़ी सी कमी है. सो नेक्स्ट थिंग, हाउ टू बी क्रिएटिव. सो यस, क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस, ये दो ऐसी चीजें जिसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं. सो क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस. सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, अगेन इसमें पर्सनालिटी, योर हैबिट्स एंड योर एटीट्यूड, ये तीनों चीजें हैं. Wait a second, something is choking. Oh my god, what was that? Actually, there's a card says, let's begin. So yeah, that was a small magic trick for you. And we were talking about creativity and uniqueness. Yeah. So that was a short example of creativity. Aila Jadoo. Yeah, this was Jadoo. मैंने मुझे सिखाया. So yeah, we were talking about creativity and ये मैंने छोटी सी कोशिश करी आपको एक example देने की how to be creative. So there are two ways of starting a topic, right? The first one, मैं सीधा आपसे बोलूं, yes, the next topic is how to be creative. And the second one was like, card from the mouth, and let's begin. उस कार्ड पे लिखा था. So here मैंने अपने आप को क्रिएटिव बनाया. जो चीज मैं करने वाला था उस पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया. मैं बोला ये चीज और किस तरीके से हो सकती है, उसको हम और क्रिएटिव कैसे बने. सो मैंने अपने आप को टाइम दिया, राइट. एंड मैंने एक ऐसी चीज चुनी जो मेरी पर्सनालिटी के साथ जाती है, जो मेरे एटीट्यूड को नीचे नहीं आने देगी, राइट. सो ये एक चीज थी हाउ टू बी क्रिएटिव, राइट. जो चीजें आप कर रहे हैं, आपको ज्यादा ऑफ द ट्रैक जाने की जरूरत नहीं है. जो चीजें आप कर रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग हैं, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई गाना गाने में बहुत अच्छा है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज, कोई राइटिंग में बहुत अच्छा है. सो आपको उसी चीज के डिफरेंट वेज देखते हैं, आपको डिफरेंट आउटकम्स देने हैं, आपको ये देखना है कि ये चीज कैसे कैसे हो सकती है, राइट. आपके दिमाग में 100 चीजें आएंगी जिसमें से आप 50 शॉर्टलिस्ट करोगे, जिसमें से 25 आपके पर्सनालिटी के साथ जाएगी, फिर उस 25 में से 10 आपके एटीट्यूड को नीचे नहीं आने देगी, एंड एक उसमें से आप करने में कंफर्टेबल होगे, राइट. सो इस सिनेरियो से मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो चीज आप कर रहे हो आप उसको वैसे ही करते रहो, बट हर बार उसको करने के और भी तरीके ढूंढो, उसको करने के डिफरेंट आउटकम्स ढूंढो यार. आज हमारे पास इंटरनेट है. इंटरनेट इज अ बिगेस्ट पावर. आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हो. सो जो चीजें आपकी, आप दूसरों की वो चीजें देखो, आप दूसरों की चीजों से कुछ उठा सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा आप किसी को कॉपी करो, बट स्टिल अगर आपको किसी की कोई चीज में से आपको कोई चीज पसंद आई, टेक दैट फ्रॉम हिम और हर. आप वो चीज लो, आप उसको अपनी तरीके से कस्टमाइज करो, एंड जब चीज वो आपके हाथ में आएगी और आप देखोगे यार ये इस तरीके से कर रहा है, बट ये ऐसे भी हो सकता है, और वो जब पॉइंट आपके दिमाग में आएगा ना, ये ऐसे भी हो सकता है, दैट मीन्स आप क्रिएटिव बन चुके हो. एंड सब क्रिएटिव है यार अपनी वे में, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि और कैसे क्रिएटिव हो सकता है. सी, मैं भी आप ही की तरह हूँ. मैंने अभी तक कुछ इतना करा नहीं है, बट स्टिल मैं जो मैं सब आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ. एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ये सारे मेरे एज ग्रुप के ही हैं. एंड जो मुझे जोश चाहिए होता है, आज वो जोश मुझे दिख रहा है. जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, एवरीवन जस्ट स्टार्ट कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन. तो मुझे बहुत मजा आ रहा है आज आपके साथ. एंड बिलीव मी, आई हैव डन मेनी वेबिनार्स एंड मेनी ऑनलाइन शोज इन दिस लॉकडाउन, बट आज की ऑडियंस में कुछ अलग बात है, मुझे वो दिख रहा है. दिस ऑडियंस इज द बेस्ट टिल नाउ. सो या, कांग्रेचुलेशंस टू दैट. आप सब बहुत यूनिक है. Tripti says we are enjoying, sir. Okay, thank you so much. So the next point is how to decide your perspective. Okay, the next comment is Mr. Creative. Mr. Creative ही लिख रहे हैं. Wow. So the next point is how to decide your perspective. So see, when I do webinars, मैं एकदम फ्लो में नहीं निकल जाता हूँ, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ क्योंकि कभी कभार मैं बातें करते करते खुद ही ज्यादा बोर हो जाता हूँ. एंड जब तक मैं मैजिक नहीं करता ना,
तब तक मुझे कोई बात पछती नहीं. So ladies and gentlemen, boys and girls, भाइयों और उनकी बहनों, now this is a time for magic. And Saksham, if you are getting my voice, what I want you to do, just unmute anyone from the list. And अगर कोई भी इस मैजिक का पार्ट बनना चाहता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो मी. So Saksham will choose anyone from you all. And Saksham, किसी को भी unmute कर दीजिए. Anyone. And जो भी unmute होगा, मेरी उनसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है. क्या कौन unmute हुआ है? Gauri. Hello, sir. Here. Can you turn on your video? I am not able to see you. Hello, sir. Am I visible? No. Wait. I am just fixing it. Gauri. Okay, Gauri Vadera. Hi, Gauri. How are you? Hello, sir. I'm great, sir. How are you? I am sexy. What? Okay. So now, bringing something to you is something जो मुझे magic करने में help करती है. Right? Everyone wants to know कि magic के पीछे क्या होता है. What is the secret? So today I'm going to reveal this. Are you excited, Gauri? Yes, sir. A lot. I'm also interested in magic. Okay. So now, before starting the magic, Gauri, I wear a locket every time. Actually, my dad is also a magician, as you all can see. Yes, is it visible? Yes. Okay. So my dad is also a magician, and he says magic comes from this only. So he gave it to me. So this is a locket which I wear. Gauri, what I want you to do, we will keep it very random. Okay. Now, Gauri, locket is here. I'm going to put it in my t-shirt. Gauri, now you have to make few choices. Okay. And we'll play a elimination game. एक elimination game खेलेंगे, but वो बाद में. First, Gauri, are you familiar with playing cards? Playing cards? Yes, sir. So there are 52 cards, and दो color होते हैं deck पे. The red one, and the black one. So Gauri, select any one color. Sir, I select red one. Red one, sure? Yes, sir. Okay, very nice. So in red, there are two suits, the hearts and the diamonds. Gauri, आपको कौन सा suit select करना है? Sir, I choose the diamond. Diamonds, sure? Do you want to change Yes. your mind for somehow? No, sir. Okay, Gauri, as I mentioned before, this is going to be an elimination game. So diamonds is going to be eliminated by your choice. Okay. So now, Gauri, we have hearts with us, and hearts में एक suit के there are 13 cards, 1 to 10 number cards, and there are 3 picture cards: the Jack, the Queen, and the King. So which one do you want to select? The numbers or the pictures? The queen. You want to take the Queen? Yes. Sure. Yes. The Queen of Hearts. That the card that you made is the Queen of Hearts. Yes. And it is completely random, Gauri. All the choices are made by you. Okay. अभी तक basically magic start ही नहीं हुआ है. You chose the color, you chose the suit, and you chose the card. 52 cards में से हमने एक card choose करा है. आपने एक card choose करा है. That is the Queen of Hearts. Yes, Gauri. And if I tell you, if I tell everyone कि I can see future, I can predict future, मैं future देख सकता हूँ. आप में से कौन-कौन believe करेगा? गौरी, आप believe करोगे? Probably not, sir. Probably not. Okay, सब लोग यही बोलने वाले कि हम ऐसा believe नहीं करते. ये आदमी झूठा है. Okay, so मैं ये prove करने के लिए, गौरी, you made the card, the Queen of Hearts. And magic start होने से पहले ये locket मैंने आपको दिखाया था, right? Yes, sir. And Gauri, you know what? The best part is, actually, there is a card. There is a card struck into this locket, right? And you have no idea what this card is. And amazing तब होता अगर ये Queen of Hearts होता, and ये magic गलत हो जाता है. But not this time, because this is the Queen of Hearts that you chose. Whoa! Sir, how did you do this? Actually, I did it very pretty well. So this is the Queen of Hearts, and I am Ram Mishra Magic. I hope you enjoyed this. And this is struck into this locket. Okay. Pranav Rastogi says, I told you. Yeah. Thank you so much, Pranav. Thank you so much, Gauri. Thank you so much, Gauri, for being a part of this. Sir, I need to know the theory too. Okay, that is another webinar. Okay. So we'll talk about this later. So Saksham, Thank you, sir.
Thank you so much. Thank you so much, Gauri. You can mute yourself now. We'll begin with the webinar. Okay, so yeah, that was me, Ram Mishra Magic. This is what I do. So yeah, अब मैं थोड़ा और ज़्यादा charge up हो गया हूँ. So let's get back to the webinar, and the next topic is how to decide your perspective, how to keep your perspective. So you know, when we talk about perspective, actually you know what, when we talk about perspective, हम बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आप इस चीज से रिलेट करोगे. यू नो, अगर आपकी क्लास में कोई बहुत ही ज्यादा स्टूडियस लड़का या लड़की है, आप उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हो. एंड इफ दिल से कि पढ़ाई करने के बहुत सारे फायदे हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव है, और आप उनके पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस होते हो. सो आपको भी लगता है यार पढ़ाई करने के बहुत सारे फायदे हैं. हमारी टीचर्स भी हमें यही बोलती है कि पढ़ाई करने के बहुत सारे फायदे हैं. एंड एडिंग टू दिस, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा गुरु मंत्र बताना चाहूंगा. हाउ टू बी यूनिक, हाउ टू बी पॉपुलर, हाउ टू बी सक्सेसफुल. इन सबका सबसे कनेक्शन बस एक ही है. देयर आर ओनली वन रूल, वन मंत्र ऑफ दिस, हाउ टू बी यूनिक, हाउ टू बी सक्सेसफुल. ऑलवेज 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 लिसन टू योर पेरेंट्स फर्स्ट, एंड द सेकंड वन, ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स, योर गुरुज. ये मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमेशा अपने टीचर्स की सुनो, हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनो, बिकॉज ये लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपका भला चाहते हैं. बहुत बहुत थैंकलेस जॉब होती है ये, और यू नो दिल से आपका भला चाहते हैं ये लोग. तो हमेशा इनकी सुनो, क्योंकि ये कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचने वाले. सो या कमिंग बैक टू द पर्सपेक्टिव पॉइंट, समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव सेम हो, मतलब सही हो. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव गलत हो, और आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू हैव स्टडीड अबाउट द टॉपिक. आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं. और अगर आपको नॉलेज नहीं है, मेरे ख्याल से तो अगर आपको किसी बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उस टॉपिक पे बोलना ही नहीं चाहिए जब तक आपको उस टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो जाती, बिकॉज दैट विल मेक यू अ फूल इन फ्रंट ऑफ एनीवन. सो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, फर्स्ट आपको उस चीज का होमवर्क करना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर, and if we like that topic or not. Yeah, exactly. So कभी भी ऑफ द ट्रैक नहीं बोलना है यार आपको. अगर मैं एक मैजिशियन हूँ, मुझे अगर मैजिक के वेबिनार में बुलाया है तो मुझे उसी पे बोलना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर मुझे बोला जाता सर आप एक मैजिशियन हो, आप तो स्टेज करते हो, आप शायद ये भी बता दोगे कि स्टेज पे डांस कैसे कर सकते हो, तो आप डांस पे वेबिनार बताओ अपना कैसे आप दोगे. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो वो उस बात की कोई सेंस नहीं बनेगी. सो या कमिंग बैक टू द पर्सपेक्टिव, आपको अपना पर्सपेक्टिव हमेशा चूज करना पड़ता है, एंड ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे. आपको हर टॉपिक के बारे में एक तो बहुत, जैसे मैंने बोला, आपको बहुत अवेयर होना चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंस बाय पीपल, आप तभी इन्फ्लुएंस होते हो जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं होता, राइट? आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो सामने वाला इंसान जो भी बोलेगा आपको वो सही लगेगा, अच्छा ही लगेगा. सो हमेशा अगर आप किसी से कोई चीज सुनते हैं, उस पर बिलीव मत करना, राइट? Always believe on yourself. This is a very good thing. Always believe in yourself. मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सामने वाले को एकदम ही गलत ठहरा दो. ऐसा भी हो सकता है कि वो सही हो, बट अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज रखना. अगर आपने किसी टॉपिक पे सुना और आपको थोड़ा लग रहा है कि यार इस टॉपिक मुझे सोचना चाहिए, तो घर पे आओ, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में स्टडी करो, एंड उसको लेकर अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि जो पर्सपेक्टिव आप पे इन्फ्लुएंस हुआ है आप किसी और पे भी कर पाओ. या ऐसा भी हो सकता है सामने वाला गलत हो, सामने वाला बिना बिना किसी रिसर्च के आपसे वो बात बोल रहा हो, और आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल गई और आपको वो सोसाइटी में फूल बना दे, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑलवेज रिसर्च. एंड जब आप रिसर्च करोगे, जब आपका होमवर्क हो जाएगा अच्छे से, ऑटोमेटिकली आप अपना पर्सपेक्टिव चूज कर पाओगे. आपको पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत, राइट? सपोज अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करते हैं. अगर कहीं पे एक खाई है, अभी अभी आपको कुछ भी नहीं पता, अभी आप सब न्यूली बॉर्न हो, आपको अभी कुछ भी नहीं पता, राइट? सो एक कहीं पे खाई है, एंड आपको किसी डम्ब इंसान ने आके बोल दिया ये खाई हाइट से कुछ नहीं होता, अगर आप खाई में कूदोगे आपको कुछ नहीं होगा, यू विल फ्लाई इन द एयर, राइट? आपको किसी ने ये बोल दिया, लेकिन आपको खाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है. सो आप खाई में जाके कूदोगे नहीं.
आपको उसके बारे में रिसर्च करनी है, आपको लोगों से पूछना है, आपको गूगल करना है, आपको गूगल करना है खाई में कूदने से मौत होती है क्या? ओके, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो लोग आपके वेल विशर्स है, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, आपको उनसे पूछना है। अगर उनको भी नहीं पता, आपको जगह जगह से रिसर्च करनी है। और जो आपको जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके बारे में भला सोचते हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू से आर यू मैड, खाई में कूदने से डेथ होती ही होती है। सो आपका अपना पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देन यू गो टू दैट डम पर्सन एंड व्हेन ही और शी विल से खाई में कूदने से मौत नहीं होती, यू विल फ्लाई। सो उनको बोलो, आप कूद के दिखाओ, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। अच्छा, ये भी मत करना, उनका पर्सपेक्टिव क्लियर कर देना कि स्टॉप 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 टेलिंग पीपल लाई, सच बताओ सबको। एंड आपको अपना बस पर्सपेक्टिव क्लियर करना है, एंड आपको पर्सपेक्टिव लोगों में रखना है अगर आपका होमवर्क और रिसर्च अच्छी हुई हो। अगेन, दो चीजें मैंने इसमें कवर करी। फर्स्ट थिंग, अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना है, होमवर्क करना, और अगर आपका होमवर्क किसी टॉपिक पे नहीं हुआ है, मत बोलना, ऑलवेज कीप अ साइलेंस, शांत रहो, लोगों की बातें सुनो, जो भी बातें आपको सुनेगी उस पे घर आके रिसर्च करो या वहीं पे रिसर्च करो, इट्स अप टू यू। ओके, दैट्स हाउ you will you will keep your perspective, you will find your perspective. Okay, now the main thing, how to how to achieve our goals. Yes, the first thing is very is very fictional, I will say. Goals, when it comes to goals, dream big. The first one, dream big. एंड एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था, लेट एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि सपने वो नहीं आप जो सोने के बाद देखते हैं, सपने वो हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं। सो इट इज अ वेरी डीप लाइन, और ये बहुत 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 ज्यादा ट्रू है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो एडिंग टू दिस, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा दैट आई एम ऑल्सो अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। I have achieved this Guinness World Record in the year 2016 and made my country proud. So I dreamt of doing something for my country. I am a very patriotic person. I love my army. I love the way our country is. I love the people of India. I think our country is the most supreme country in the world. I am a very patriotic person. So as being a magician, मैंने सोचा कि मैं अपनी country के लिए क्या कर सकता हूँ. So I did this thing. There was a record that I broke with the organization, and I achieved the Guinness World Record for my country, right? And Satvik is asking, what do you did, sir? So basically, there was a record that made by Italy. The record was most magicians performed in a single show, right? And the number was about 150 magicians that Italy. I'm not sure. There was only 153, I guess, 153 magicians. जो इटली का रिकॉर्ड था। एंड देन इंडिया में ये ट्रायल हुआ, एंड उसमें सिर्फ इंडिया के म्यूजिशियंस नहीं थे, देयर वर म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, एंड देयर वर अराउंड 250 म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, फ्रॉम बिग बिग कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, राइट? एंड इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए ऑडिशंस हुए थे सीपी में, एंड आई वेंट टू द ऑडिशंस एंड आई परफॉर्म देयर। एंड जब ये ऑडिशन हुए थे, मैंने वहां पे सब देखा, मैं बिल्कुल थोड़ा नम हो गया था, बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे थोड़ा आर्ट का एक डिफरेंट लेवल है। स्पेशली जब हम मैजिक की बात करते हैं, मैजिक इंडिया में भी बहुत अच्छा है, बट एक थोड़ा स्टेप फर्दर हो जाता है इन कंट्रीज में। सो मैं थोड़ा नम हो गया था देख के कि ओके, सो इन लोगों के साथ मैं यहाँ पे कॉम्पीट करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं एकदम फिर उसके बाद थोड़ा ब्लैंक हो गया था। माय फादर गेव मी सम कॉन्फिडेंस कि जो चीज आप करते हो वो यूनिक है, आपने जो इतने सालों से मेहनत करी है वो यूनिक है, जो क्रिएटिविटी आपने दिखाई है वो यूनिक है, जो पर्सनालिटी आपके, जो एटीट्यूड है वो यूनिक है। आपको कुछ नहीं करना वहां जाके, जो आपने प्रिपेयर करा है स्टेज पे जाके बस आपको वो परफॉर्म करना है। सो देयर वर सम जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड आई परफॉर्म देयर। And I also say that by the grace of God, उन 250 magicians में, उन 250 magicians में से I was selected on the number 19th, और
नंबर जब आप ये सुनते हो 19th, बहुत मतलब तब मैं 16 साल का था बस, एंड मुझे सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि इतने सारे 250 म्यूजिशियंस में से, जहाँ पे यूएस के भी म्यूजिशियन थे, ऑस्ट्रेलिया के, अर्जेंटीना, फ्रांस, इतने सारे कंट्रीज के म्यूजिशियंस थे, एंड वहां पे मैं एक ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाता हूँ, और 250 म्यूजिशियंस में से भी सारे म्यूजिशियन सेलेक्ट नहीं हुए थे, ये भी मैं आपको बता दूं, और मैं वहां पे 19th नंबर पे सेलेक्ट होता हूँ, और वहां पे मेरे मेरे पीछे बहुत सारे सीनियर म्यूजिशियंस हैं, और वहां पे एक मुझे प्रेशर भी आ गया कि इतने सारे सीनियर म्यूजिशियंस मेरे पीछे हैं, एंड स्टिल मैं जो रहा हूँ, तब मुझे लगा कि यार यस, मैंने मैंने कुछ यूनिक करा है, तभी तभी आई एम स्टैंडिंग राइट देयर, एंड यू नो समटाइम्स लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं ये डिजर्व करता हूँ या नहीं, क्यों मैं यहाँ पे हूँ, यू नो व्हाट, जो भी आपको लाइफ में मिलता है आप वो चीज डिजर्व करते हो, सो नेवर से इट लाइक कि मुझे नहीं पता मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ या नहीं, आपने उस चीज के लिए मेहनत करी है, तभी वो आपको चीज मिली है, यू नो, नो वन इज अ फूल कि आपको कोई भी चीज फ्री में उठा के दे दे, यू नो, वर्ल्ड आउटसाइड इज वेरी क्रूअल, as well as at the same time it is very humble to you, so कोई भी आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देगा, कोई भी बिना मतलब के नहीं देगा, अगर वो आपके पेरेंट्स या टीचर्स हैं उनकी बात अलग है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द सोसाइटी दैट वी लिव इन, सो कोई भी आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देने वाला, जो भी आपको चीज मिलेगी वो आप डिजर्व करते हो, आपने उसके लिए मेहनत करी है, यू आर यूनिक, दैट्स व्हाई आपको वो चीज मिली है, सो ये सारे जो मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स बताए ये सब है, सो गोल्स की बात कर रहे थे हम, सो ये मेरा एक गोल था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाऊं, सो इन द ईयर 2016 आई हैव अचीव्ड दिस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड मेड माय कंट्री प्राउड, सो मैंने इस चीज के लिए ड्रीम करा, आई वाज टॉकिंग अबाउट ड्रीमिंग बिग, सो मैंने इस चीज के लिए ड्रीम करा, इसलिए वो मुझे चीज मिली, Sorry यस, for the या, interruptions. So I would like to announce that we are going live on our Facebook. I am sharing the link in the chat box. Everyone please share the link and can see the webinar from there also. ओके, सो फेसबुक पे भी लाइव है हम, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं यहाँ पे, so okay, I hope Mark Zuckerberg is watching me, all right, okay, so now coming back to the point, goals, सबकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, यू ऑल आर इन स्कूल राइट, अब मैं आपके लिए आपकी तरीके का एक एग्जांपल देता हूँ, हर क्लास में देयर आर, हम एक एवरेज ले लेते हैं, 50 to 60 बच्चे होते हैं क्लास में एवरेज, सबको पढ़ाने वाला टीचर एक, सपोज आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस मेरे बस की नहीं थी, सो आई वाज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं कॉमर्स वालों के लिए बोलता हूँ, सो अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स वाली क्लास में पढ़ रहे हो, देयर आर 50-60%, आपको सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या वो 50-60 लोग सब सीए बनते हैं, या सब अकाउंटेंट बनते हैं, या सब कॉमर्स की लाइन में जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं, एंड सब अपने गोल्स फॉलो करते हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर आप अपने गोल्स को फॉलो करते रहोगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट इज द पावर ऑफ ऑल माइटी की एक दिन आप वो गोल जरूर अचीव करोगे, सो नेवर नेवर स्टॉप वर्किंग फॉर दैट, एंड व्हेन इट कम्स टू गोल्स एंड वर्किंग, so sir please tell me that what was the record, so the record was most magicians performed in a single show, सबसे ज्यादा magicians ने एक single show में perform करा, so उन magicians में से I was selected on the number 19 to represent my country India, yes, so that was the record, so now coming back to the point, we are talking about goals, so सबके सबके अलग अलग goals होते हैं, and yeah, always follow your goals, okay, एंड यहाँ पे बात आती है कि गोल्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है गोल्स को अचीव करने के लिए, सो द फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्क, सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इज ए प्रोसेस दैट इज इंक्लूडेड इन स्मार्ट वर्क, राइट, आपको स्मार्ट वर्क करना है, और जो ये आपका स्मार्ट वर्क है ये आपको हार्ड वर्क के साथ करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू वर्क स्मार्ट, राइट, आपको मेहनत से काम करना है स्मार्ट काम करने के लिए, सी, अगर ऐसा होता कि हार्डवर्क से आपको सक्सेस मिलती, तो मेरे ख्याल से रिक्शे वाले हर जगह पॉपुलर होते, रिक्शे वाले बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, राइट, सो हमेशा आपको स्मार्ट वर्क करना है, यू हैव टू डिसाइड योर गोल, एंड आपको वो स्मार्टली चूज करना है कि मैं इस गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ, सपोज
एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बेसिक, राइट? मेरे पास यहाँ पे एक पेन है, मेरा पेन ये टेबल पे रखा है, और यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए का पर्सपेक्टिव है कि अगर इस पेन को उठाना है तो मुझे इस पेन तक पहुंचना पड़ेगा और अपने हाथ से मुझे इस पेन को उठाना पड़ेगा। पर्सन बी का माइंडसेट कुछ और है। पर्सन बी का गोल ये है कि अगर मुझे इस पेन को उठाना है तो मुझे अपने पियोन को बुलाना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा मेरा पेन उठाओ, राइट? सो यहाँ पे भी दो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा पर्सन ए छोटा है या पर्सन ए की सोच छोटी है, बट डिपेंड, इसमें बस ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। यहाँ पे गोल की बात आती है क्योंकि सबका गोल अलग अलग होता है, यू नो। अब इसमें स्मार्ट वर्क किसका था ये बताओ। अच्छा, रॉब तो पर्सन बी का था, राइट? लेकिन इसमें स्मार्ट वर्क किसका था? ऑब्वियसली पर्सन ए का स्मार्ट वर्क था। नो पाकी कुमार, पर्सन ए का ज्यादा स्मार्ट वर्क था, यू नो। इफ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी पर्सन बी की। पहले वो पियोन को बुलाएगा, उसे बोलेगा मुझे पेन उठा के दो, यू नो, काफी सारी चीजें रिलेट होगी, पेन उठा के उसे देगा, टाइम टेकिंग, एनर्जी वेस्ट होगी, काफी सारी चीजें। देन कम्स टू पर्सन ए, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने चुपचाप पेन उठा लिया। इतना हौच-पौच क्यों करना है? कितना कितना टाइम लगता है पेन को उठाने में, राइट? दिस इज द स्मार्ट वर्क। उसने अपना टाइम बचाया, उसने अपनी एनर्जी बचाई और उसने काफी कुछ बचाया। ओके, सो यस, ऑलवेज बी स्मार्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए, कान हमेशा खुले रखिए, और व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम सीनियर, कोशिश करिए कि अपने मुंह का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आप बोलेंगे सिर्फ उतना जितना आपने सुना है, राइट? जितनी आपकी नॉलेज है, लेकिन सुनने की कोई लिमिट नहीं है। सुनने की कोई लिमिट नहीं है। सामने वाला अपने एक्सपीरियंस से जितना बोले, कोई बोलेगा, कोई बोलेगा, आप सुन रहे हो, सुनने की कोई लिमिट नहीं है। कुछ यहाँ से सुना, कुछ यहाँ से सुना, कुछ कहीं से सुना, वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। सो कहीं भी अगर कोई सीनियर पीपल है, कोई भी सीनियर इंसान है, उसके एक्सपीरियंस से सीखो, उसकी बातें सुनो, कुछ भी बताएगा ना, यू नो, वो आपके लिए गोल्ड होगा, गोल्ड, द रियल गोल्ड, जो आपको आपके गोल अचीव करने में मेहनत आपकी आपकी हेल्प करेगा। सो यस, दैट वाज फ्यू पॉइंट्स जो आपको यूनिक बनाते हैं। कोई यूनिक बनने की कोई स्पेशल ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूं कि अलग काम करना शुरू कर दो आप यूनिक हो जाओगे, ये करना शुरू कर दो आप यूनिक हो जाओगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। द फर्स्ट वन एक बार रिकॉल करेंगे, पर्सनालिटी, सेकंड इज एटीट्यूड, थर्ड वन इज हैबिट्स, योर हैबिट्स, फोर्थ वन क्रिएटिव। आई नो आप सब बहुत अमेजिंग हो, आप सब बहुत क्रिएटिव हो। The fifth one, your perspective, and the last one, your goals. Okay? So ये सारे पॉइंट अगर आपने सबको इस पे काम करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस, आप मुझे एक दिन याद करोगे अगर आपने ये सारे पॉइंट्स। मैं भी आपको ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। आई होप आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ने भी आपको ये बताया होगा, बट हम इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें सुनने में काफी, मतलब इतना इतना एक्साइट नहीं करता ना, सुनने में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। बट बिलीव मी sir, you are amazing and so are you. Thank you so much bro. So हाँ, ये कुछ चीजें थी, अगर आप फॉलो करोगे, एंड बिलीव मी, यूनिकनेस इज अ की टू सक्सेस। और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता? अगेन, यूनिकनेस इज द की टू सक्सेस। यूनिकनेस आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। ये सारी चीजें आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एंड विद दिस, yes, the envelope, yeah, the envelope, actually we have envelope. Saksham, I would like to request you to unmute anyone from the comment, from the participants list. किसी को भी आप unmute कर दीजिए फिर से, सक्षम, if you are getting my voice. Okay, sir. Yeah. So I'm unmuting Pranav Rastogi. प्रणव रस्तोगी, हमारा प्रणव रस्तोगी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? Where is Pranav? Yes, sir. Okay, Pranav, by your voice, I would like to ask you, how's the Josh? Hi, sir. Oh, very nice. So I am still figuring out where are you, Pranav. Wait, it will take few seconds only. Where is Pranav? Pranav. Hello, sir. No. I can hear you, but I can't see you. So Yes, still sir, I'm figuring here. out where are you. Pranav, let's do one thing. Yes, Okay. sir. Let's do one thing. Okay, so everyone can see the envelope, right? Yeah. And it is from the very beginning. And everyone knows that कि यहाँ इसके अंदर एक पेपर है, right, Pranav? Yep. Yes, sir. Pranav, what I want you to do,
Now I will try to do something with your mind. Okay, and सुनने में काफी spooky लगता है, but believe me, it's very entertaining. Right, Pranav? So what I wanted to think, just think of any of your crush, the name of your crush, any of your crush. कोई भी आप एक नाम सोचिए अपने दिमाग में. It could be celebrity also. Celebrity, yeah, exactly, celebrity also. कोई भी हो सकता है. Yes. Okay. And the envelope is right there from the very beginning. And उसके अंदर एक paper है. Pranav, you have a name in your mind, right? Yeah. For somehow, do you want to change your mind? It's up to you. I'm not forcing you. I'm keeping this very random. Do you want to change your mind? No. Sure, Pranav, you are very confident. No. Okay, sure. Yes, sir. Okay, Pranav. So for the very first time, envelope is there. किस नाम के बारे में आप सोच रहे हो? ऑडियंस को बता दो. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Oh, so you are a Marvel fan, right? Yeah. Okay, so you are thinking about Scarlett, right? And this is a very random one. प्रणव, सबसे पहले सबको बता दो, हमने कुछ भी सेटअप नहीं कर रखा है, कुछ भी यहाँ पे सेटअप नहीं हुआ है, right? Ah, no setup is there. This is very random. So Pranav, now and again मैंने आपको आपका mind change करने की someone says good choice. Yeah, it is a very good choice. So yeah, और मैंने आपको आपका mind change करने की choice भी दी थी. Yes, very clearly I am going to take this envelope from here, and you all know there's a paper inside the envelope, right? I am going to take this paper out. So here is the paper, right? And you have selected Scarlett Johansson. And yes, the very important thing, the envelope is empty, right? So we have the paper here. Pranav, Yes, sir. so are you a big Scarlett fan? Yes. You know, it's a very difficult thing to read someone's mind through internet, and many times it gets wrong. But you know, your envelope starting से वहीं पे था. And हाँ. webinar start होने से पहले मैंने उसके अंदर एक पेपर डाल दिया था. And you know, most of the time it goes wrong, but not this time, Pranav, because the thing that I wrote is Scarlett. This is Scarlett, OMG. Pranav, Yes, sir. and I have predicted this webinar start होने से पहले. This is Scarlett, your crush, and mine also. So yeah, Pranav, thank you so much for this. Thank you so much for joining me. And yes, everyone, this is Ram Mishra Magic for you, reading minds through internet. Thank you so much, Pranav. Thank you. Thank you for your time. You are a lovely audience. Thank you so much. Thank you too, sir. आपने इतनी अच्छी बातें बताई. Thank you so much. You can mute yourself now. Okay, now, thank you so much, everyone. Thank you, Rectifying. Thank you so much. So now, अब Q&A session करते हैं. So if you have any questions related to being unique, related to the webinar, related to the magic, you can ask me. I'm here. So everyone, you can raise your hand through Zoom app function, Yeah. so that I can unmute the person. Yeah. So it's very difficult to find the name in the chat box as many are commenting over there. You can just raise your hand. So Arnav, I am unmuting Arnav. Apurva Gupta asked, how did you do that? I did it pretty well. Thank you so much. Yes, कौन है line पे? Arnav. Arnav. Sir, Yes. sir, Arnav, your voice is breaking. Arnav? Hello? yes, sir. Can you hear me? Yeah. Okay, sir. Sir, I didn't like have a question or anything. I was just saying that I also know magic. Wow. Yeah. So we like- have another magician here. Someone else is very unique. Very good, Arnav. Please continue. Sir, sir, I have a question. Do you like know any card tricks, sir? Yeah, I know card tricks. Okay, so sir, did you see the sir? There was this card trick on America's Got Talent, sir. Like, he won the finals. Mm-hmm. The name is Shin Lim. So he I don't know. I don't really remember. I his remember. name. Yeah, Arnav, you continue, please. Yeah, I think. Yeah. I don't. Yeah, I don't really remember it too No much. problem. No problem. Yeah. So like, do you know that magic trick?
So your question is, do I know that magic? Wow. Yes. Sir, you're muted. Shit. Who muted me? Yes, sir. So yes, Arnav, yeah, my answer to you is, so my answer to you is that I know the trick, I know that magic, but I don't do it. The reason is, वो कोई और करता है, उस चीज को करके मैं यूनिक नहीं बनूंगा. मुझे अगर यूनिक बनना है, क्रिएटिव बनना है, तो मुझे कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो मेरी बनाई है. So I Okay, hope sir. आपको अपना आंसर मिल गया. और थैंक यू सो मच. Welcome, sir. Thank you. What's your motivation? Actually, my father is my motivation. He's a big magician. Whenever it comes to representing Indian magic, there is a name called Kuldeep Mishra. उनका जरूर नाम आएगा magic को promote करने में. So yeah, he's my motivation. Completely lit. Thank you so much, Arnav. Thank you. So I'm So, yeah. unmuting Granth Kumar. Okay. कुमार साहब आ चुके हैं हमारे बीच. Hello. If you are getting my voice. I think he has got some technical issue. Let me check. Okay. So I'm unmuting Vinay Dhal from DPS school. Vinay. Okay. Sir, my question is that since you were first in commerce, can you like if I think about a calculation like from 1 to 10 and something about addition, then can you predict it? Can I predict it? So let's try this. What's your name again, brother? Vinay Dayal. Vinay. Vinay, now what I want you to do, just think of a number between 1 and 10. This is a complete experiment. Okay. 1 to 10. Okay, you have a number? Yep. So I have a card with me here. Okay. I am visible to you, right? Yep. So I have a card with me here. I'm going to write a number here. I don't know. It is just an experiment. Just ignore this. It is just an experiment. Okay, so I have written down a number here. So for the very first time, which number are you thinking of? 8. It's 8. I was very close, but still I have written 7. So, but I was very close. So yeah, अगर आप मेरे सामने होते तो शायद मैं completely guess कर पाता. But I am not seeing your video. I am just listening to your voice. But still, that was a complete Also, one more experiment. thing. Yeah. Can you create illusions? You know, like Houdini did. Okay, so you are talking about illusions. Yes, I do illusions because I'm an illusionist. That is my job, to make illusions. Yeah, bro, I make illusions. Yes. Can you do one? Can I do one? I will do it in the end. Just wait for the end. I have something for you in the end. Yeah. Next question, please. Okay, so can you do this trick, like the Rubik's Cube trick, in which came in National Geographic in brain games? The Rubik's Cube. Yes, I do Rubik's Cube. So for that, I have a video of this on my channel. So everyone, if you want to follow my journey on Instagram, Facebook, YouTube, anywhere, just type Ram Mishra Magic. On Instagram, I am much active on Instagram. So just type Ram Mishra Magic. आपको मैं मिल जाऊंगा and we'll have fun. So thank you so much, Vinay. I hope it will work for you. Okay, yeah, there is a question. Sri Vats wants to ask you, what is your secret to? Okay, so there are lots of chats. I can see there are 182 chats. So let us take question from the person who are raising their hand. Okay, done. So I'm unmuting Satvik Pahuja. Okay. So everyone, if you have a question, just raise your hands. Sir, Yes, sir. sir, have you seen Sacred Rihanna's magic? No, sir. She does very good magic. Sure, sir. I will definitely check her after the webinar also, obviously. Thank you so much for the good reference, sir. Avir Singh says Dynamo is better. So now I am unmuting Arnav Aswal. Arnav, okay. So I think his question Hello, is, sir.
Sir, Yeah, actually, I don't have a question. I wanted to do a magic trick on you, sir. Oh wow. So okay, someone has taken my job. Okay, Arnav, go on. Okay, sir. So, sir, I'm not really sure. Like, Arnav, sir, can it's we kind see of, you? sir. Can we see you as your camera is? Your camera is turned off, Arnav. Yeah, sir. I'll just turn it on. Yeah. Can we see Sir, your 2 minutes. cute little face? I'm just So, predicting it. is it working? I don't know. Yeah, it's working. It's It's working. working. Wow. Yes, sir. Hi. Sir, this trick, sir, I'm not really sure, sir. Sometimes it works for me, sometimes it doesn't, sir. Okay, Sir, so first you have to choose a number between 1 and 10 done. and multiply it by 9 in your head. Okay, so I have to do the At maths. the I am first, very bad in yeah, maths. Okay, still. Okay, yeah. at the first and second digit of the number, Sorry? add the first and second digit of the number, and if it's a single digit number, add 0. Okay, done. And add 4 to the new number. Okay, done. Your answer will be 13. You are absolutely right. Very good, Arnav. Very good. Please teach me this. Thank you, Okay, sir. मैं आपसे secret नहीं पूछने वाला, but still you did it pretty well. Thank you so much. Thank you so much, Arnav, for wonderful time that you gave me. Thank you so much, Arnav. Wow. So we are having next 5 to 10 minutes more. Okay. So I'm unmuting Shauri Sharma. Okay. Sir, I just wanted to say that can you perform that magic trick which you did in that show in which you made the world record? I was really excited about that, and I wrote it in the chat window 4 or 5 times. Wow. So kind, so kind. So, brother, it's a very different setting when we perform on stage. Now we are doing a webinar. We are connected online. So as much as I can do, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ या दिखाने वाला हूँ. But if you're talking about that thing, so that was a very huge thing, जो phone पे नहीं हो सकती. But still, अगर lockdown खुलेगा, you have my Instagram and Facebook ID, right? Ram Mishra Magic. So कभी भी होगा मैं वहाँ पे poster डाल दूँगा, so you can come and see me performing that thing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Is there any favorite magic trick you have from some other magician? Favorite magic trick? If I'll say in magician's language, so I think you won't get it. But actually मैं सारे magic से fascinate हो जाता हूँ. Every magic is my favorite magic, but still, if there is any one, I have to choose any one. So there is a magic that Dynamo do. He walks on river. I don't know how, but Yes, that plexiglass on which he walks. Huh? That plexiglass planks in the river on which he walks. Its Okay, density is the same as water, and it as cannot be seen. a magician, I can say that is what people think, but this is not the real secret. So yeah. Thank you so much for your question, man. Thank you so much. Can we have another one? So Daksh Sahani. Daksh. Okay, Daksh. Hello, Daksh. Daksh, hello. ऐसा कभी हुआ है कि आपका मैजिक ऑडियंस के सामने नाक हुआ है वर्क? Wow, such a cute question. So हाँ, magic reveal हो जाता है. Yo, so ये हर शो में मेरे साथ होता है. It is not this कि मैं बहुत बुरा magician हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा. But ऐसा हर शो में होता है. But you know, sometimes, मतलब most of the time, people think कि magician अपना secret छुपाते हैं. No, ऐसा नहीं है. Actually, जो main motive होता है magicians का, वो ये होता है कि सामने वाला entertain हो जाए. अगर वो मेरी trick पकड़ लेता है या मैजिक पकड़ लेता है और उसको बहुत हंसी आती है पकड़ के, सो मेरा मोटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है. यार ये बंदा एंटरटेन हुआ है, कैसे भी हुआ. सो मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती, बट इट हैपेंस वेरी रेयर. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू. So we will just accept 2 more questions, one from Paki Kumar and another one from Shayana Ali Khan. So I'm unmuting Shayana Ali Khan. Okay,
Yashan. Yashan, you are unmuted. You can ask your question. Yeah. Do you have a Facebook account? Do I have a Facebook account? Yes, I have a Facebook account, and I have mentioned it. This is Ram Mishra Magic on everywhere, on YouTube, on Instagram, on Twitter, on LinkedIn. If you use Orkut, so on Orkut, it is Ram Mishra Magic everywhere. I hope you got your answer. Thank you so much, Yan. The next one, please. So next one is Pakhi Kumar. Pakhi. Yeah, hello, sir. Hi. Good evening. Good evening. How are you? Yeah, so like we're talking about all about magic. So I thought that I'll have one math magic, mathematical magic. Okay, another one. Yeah. Yeah, so you have to think of a number between 1 and 10 Okay, done. and then multiply it by 2. Okay, done. And then you have to add 12 to the product 12. Okay, done. and then divide it by 2. Okay, done. And now from the quotient, you have to subtract the number that you had guessed, like you had taken. Okay, done. And the answer will be 6. You are absolutely right. Okay, so Yeah. which school are you from? I'm from DPS. DPS, is it Delhi, DPS Gautam Buddha Nagar. Delhi Public School, right? Yeah. So I hope कि DPS के मैथ्स टीचर जो है वो भी शायद एक म्यूजिशियन है, or not? everyone is showing me magic related to maths, and मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि मैथ्स में बहुत बुरा हूँ. मेरे से जो एडिशंस हुई है ना, अभी मुझे पता है मैंने कितने डिफिकल्टी के साथ करी है. So but still, thank you so much, Pakhi. Okay, thank you, sir. Thank you so much. So yeah, that was. So Mr. Unique is also asking some question. Okay, Mr. Unique साहब, बताइए. Sir, can you please teach me a magic trick to clean my room? To clean your room, yes. So you will be requiring some props with you. Okay, magic sometimes involves some props. So you will be needing some props. The name of the prop is झाड़ू. So एक झाड़ू लीजिए और लग जाइए, हो जाएगा साफ. So yeah, and चलो तो आजकल हम लोग लॉकडाउन में सारे दिन हाथ में ही रखे रखते हैं. Very nice, very nice. बस आप अपने हाथ में रखिए, कोशिश करिए. कोई काम ही नहीं है सर. क्या सर? सर अगर आपके पास काम नहीं है तो स्टिल मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात बोली थी रिलेटेड टू नोटिंग योर पॉइंट्स सोने से पहले. सो करिए, आपके पास बहुत काम होगा अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे. एंड एडिंग टू दिस पॉइंट, आप मुझे मैजिक सिखा दीजिए. सो आई ऑल्सो ओन ए स्कूल जहाँ पे आप मैजिक सीख सकते हैं. सो यू हैव माई आईडी. अगर आपको ऐसा कुछ सीखना होगा सो जस्ट टेक्स्ट मी. नेक्स्ट वन प्लीज, Saksham. So I think those were the only few questions. Okay, so I read some questions. Can I answer them? Yeah, sure. So there was one question said कि आप huge audience के साथ कैसे deal करते हैं. So I'll tell you, इसमें भी एक journey है. When I did my first show, I screwed up. Literally मैंने बहुत बुरा show करा था वो, because I was very nervous. Right? There was an auditorium in Delhi, and I screwed up. मुझे नहीं पता मैंने क्या करा था. Actually मैं वो याद भी नहीं करना चाहता कि वो इतना बुरा सपने की तरह है. But still मुझे याद है कि मैंने वो शो करा था and I was shivering. Literally मुझे उस टाइम नहीं पता था मैं क्यों शिवर कर रहा हूँ. लेकिन जब मैं बाद में सोचा कि मैं क्यों शिवर कर रहा था, I was shivering for no reason. मैं किस बात के लिए शिवर कर रहा था मुझे ये नहीं पता. My father told me one thing: when you are on stage, you know, stage थोड़ा ऊपर क्यों बनाया जाता है? When you are on stage, you are the king or queen. आपको लोग देखने के लिए बैठे हैं. You know, आप फिर घबरा किस बात से रहे हो यार? You are the supreme power. Then जब आप स्टेज पे होते हो तो आप घबरा क्यों रहे हो? आप कुछ भी करोगे लोगों को पसंद आएगा. So where are you from? Kashish want to say I am from New Delhi. I am from New Delhi itself. So yes, स्टेज का फियर मेरे दिमाग से ऐसे निकला कि यार जब मैं स्टेज पे हूँ यार, आई एम द सुप्रीम, मैं करूंगा तो मैं क्यों घबराऊं? सामने देखने वाला घबराना चाहिए, मतलब एंटरटेन होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. सो या इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे. एंड एक और मैं चीज बता देता हूँ, नेवर लुक इन द आईज ऑफ द ऑडियंस. ऑडियंस की आंखों में मत देखो. ये स्टार्टिंग में मैं चीज करता था, बट अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ स्टेज पे कि अब मैं बात करते करते भी शो कर सकता हूँ. Yes, next one. If you have any questions, or we will wrap it here. Sorry for that. I had chole bhature in the breakfast. So I'm sharing one feedback
form on the screen. Everyone, please fill the form. Everyone, please, Share before filling up the form. Okay. Okay, so we have the form. Please fill it up. Okay, मेरे पास भी आ गया. Wow. अभी भर होंगे. Please come to Hyderabad to perform magic. Oh, sure, you call me, I will be there. Okay. So I hope सबने form भर दिया हो, and if everyone is filling up the form, please fill it up, and we will wrap this session by some illusion. And yes, अच्छा form भरना please सारे. Please honestly, जैसा आपको लगा हो, please वैसा ही भरना. Which is your favorite trick? Every magic trick is my favorite one. Where can we know your programs? You can know it on my Instagram. It's Ram Mishra Magic on Instagram. Do you have a Reddit account? No, I don't use Reddit. So please tell me name of your magic teaching school. The name of the school is, sorry, okay. The name of the school is All India Magic Academy. Okay. And the last one, it says the saddest part, the saddest part is called the end. But इस हिसाब से हम एंड नहीं करने वाले. Now what's the card? As we will going to wrap this thing with a illusion. So yeah, that was me, Ram Mishra Magic. I hope आपको मैंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बताया how to be unique and you loved all my magic. I hope. So yes, I hope सबको मजा आया हो. जाते जाते बस इतना बोलूंगा. Be safe, stay in your homes, enjoy the lockdown, be productive, be amazing. You are amazing. Be more amazing. Be creative. Right? Do start doing amazing things. And start. अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी, नहीं करते तो start listening to your parents and teachers, because ये जो भी बोलेंगे वो आपके लिए gold होने वाला है. And don't waste your time. You are unique. Be more unique. That's all. Saksham, can we wrap this thing up? Yeah, thank you so much, sir, for the wonderful session. Thank you so much, everyone. Thank you so much. That is me, Ram Mishra Magic, for you. Bye-bye. Thank you all for the lovely audience. Thank you.